زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی یاد سے غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ خطیب خطبہ نے جو آدمی خلوت و جلوت کو ایک جیسا بنا دے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی یاد سے غافل نظر آتے ہیں۔ نبی کریم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ اللہ کی عبادت کریں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ شکر ادا کرتے ہیں جس نے میدان عرفات سے آپ خطبہ حج دیکھ رہے تھے براہ راست۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی یاد سے غافل نظر آتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور صاف بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم فرمایا۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو نعمتیں بخشیں۔ جو شخص خلوت اور جلوت کو ایک جیسا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی کریم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ناحق قتل پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا خیال کیا جائے۔ آج بہت بڑی تعداد میں انسان اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتے ہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت نے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے ہر تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے۔ ناحق قتل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ نبی کریم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے لوگو اللہ کی کائنات اور اس کے نظام پر بار بار غور کرو۔ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ لوگ امانتوں کو ان کے حقداروں تک نہیں پہنچا رہے۔ الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح۔ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ شیخ عبدالمانی خطبہ حج دے رہے تھے میدان عرفات سے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ آج اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر शेख अब्दुल मानी खुतबा हज दे रहे थे। मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए उनका कहना था कि जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। आज इंसानों की बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की याद से गाफिल नजर आती है। तमाम लोगों को तकवा की नसीहत की जाती है। अल्लाह ताला के साथ साथ वालिदैन के हकूक भी अदा करने चाहिए। नाहक कत्ल करने वालों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी से पेश आओ, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी खैर के लिए वक्फ की। ऐ लोगों, अल्लाह की कायनात और इसके निजाम पर बार बार गौर करो। शेख अब्दुल मानी खुतबा हज दे रहे थे मस्जिद निमरा से, जो बराह रास्त इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। आज इंसानों की बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की याद और इबादत से गाफिल नजर आती है। तकवा अख्तियार करने वालों के लिए तंगदस्ती खत्म कर दी जाती है। नाहक कत्ल पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसे अदल और इंसाफ के साथ हल किया जाए। बाज ऐसे लोग हैं जो नापतोल में कमी करते हैं। अपने भाइयों और रिश्तेदारों का ख्याल किया जाए। खयानत और नापतोल में कमी की वजह से अल्लाह का अजाब आता है। لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इस पर अपना जो है वो किरदार अदा करें।
آواز ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک. ہم دکھائیں گے ظالم سے لے کر مظلوم تک جرم کی ہر داستان. اب جرم ہو یا مجرم بچ نہیں پائے گا JNN کے ریڈار سے. ہم کریں گے بے نقاب جرم کی دنیا سے جڑے ہر شخص کو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، چھوڑو ان ملہوں کا چکر، تیر کے دریا پار کرو. ہم بنیں گے حق اور سچ کی آواز، کیونکہ ہم ہیں ٹیم فرض شناس. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا. JNN چینل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کی آواز بن کر، حق پر مبنی خبریں چلا کر قوم کو صحیح خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے JNN اپنا کردار ادا کرتی رہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی خبر جو ہے وہی آگے پاس آن کریں آپ. اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام ویورز کو بھی جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کرے کہ JNN جو نیوز چینل ہے یہ ایک آپ سمجھتے ہیں نا زرد صحافت، اس سے دور رہے اور سچی خبریں شائع کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. جتنا بھی کمیونٹی کو سروس دی جائے نیوز کی بہت اچھی ہے. میری دعا ہے کہ JNN جو ہے وہ جن کی طرح کام کرے لیکن اچھے کام کرے، یلو جرنلزم سے دور رہے اور عوام کو صحیح انفارمیشن پہنچائے. آئی ریئلی وش the best of luck to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گڈ لک ٹو JNN اور ہماری پوری دلی خواہشات یہ ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے اور بڑی ضرورت ہے میڈیا، ایک سچا اور کھرا میڈیا چینل کی ضرورت ہے اور ہوپ فلی یہ پروف کریں گے کہ بالکل صحیح خبر عوام تک پہنچائی جائے گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نیو چینل JNN لانچ ہو رہا ہے میں خصوصی طور پہ ان کو مبارکباد دے رہا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے جتنے بھی چینل زیادہ ہو رہے ہیں اتنی ایکسیس زیادہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو سہولت پہنچ رہی ہے. تو میں خصوصی طور پہ پوری ٹیم کو اور اس کے جو ہنرز ہے اس پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور آج خوشی کا دن ہے کہ اس طرح چینلز ایک اور چینل کا اضافہ ہوا ہے. میں نئے چینل JNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے.
पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888-595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद एक साथ मनाने का मामला वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपलजई की भी एक ना सुनी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुल्क भर में 3 ईदें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव हैदर खेल में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में कल ईद होगी, जबकि कुछ गाँव में परसों ईद मनाई जाएगी। 9 ज़िले 2020 को आज़मीन हज का रुकन आज़म वफ़ूक़ अरफा अदा करने के लिए अरफात रवाना हो गए हैं। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। इस साल खुतबा हज मुफ्ती आजम सऊदी अरब के बजाय दीवान शाही के मुशीर और सुप्रीम उलमा काउंसिल सऊदी अरब के रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अलमानी देंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक वक्त में पढ़ने के बाद हुजाज इकराम जुमेरात की शब मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। जुम्मा 10 ज़ुल्हिज को हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा नमाज फजर अदा करके मिना वापस लौटेंगे। यहाँ पहुंचकर सबसे बड़े शैतान जमरातुल अक़बा को ईद के करीब आते ही परदेसी घरों को लूटने लगे। बस स्टॉप पर हिफाजती इंतजामात के फुकदान के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, जबकि ट्रांसपोर्ट माफिया भी मुतहर्रिक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद का मज़ा दोबाला करने और अपनों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए परदेसियों की घरों को रवानगी का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है।
बस स्टॉप पर न ही जरासीम का अद्वियात का स्प्रे किया गया और न ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम किए गए, जबकि कारोबार और रोज़गार की तलाश में दूर दराज के इलाकों से आए परदेसी बस अड्डों पर रश उनका मामूल से बढ़ गया। बस अड्डों पर SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस कोरोना वायरस के खतरात फिर से मंडलाने लगे। बस स्टॉप पर हिफाजती इंतजामात न होने के बायस मुसाफिर बेबसी की तस्वीर बन गए, जबकि ट्रांसपोर्टर हजरात SOPs के नाम पर सरकारी नरखनामों से ज़ायद किराया वसूल करने में मसरूफ़ हैं। बस स्टॉप पर आए मुसाफिर ओवरलोडिंग के बायस भी परेशान हैं, जबकि माफिया ने टिकटें ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी। मुतहरिक ट्रांसपोर्टर माफिया ट्रांसपोर्ट की कमी और SOPs का बहाना बनाकर परदेसी मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। ईद कुर्बां पर अपने प्यारों से मुलाकातें और सुन्नत इब्राहिमी की सादत के लिए घरों को जाने वाले मुसाफिरों से अड्डा पीरवदाई में डबल किराए वसूल किए जा रहे हैं और SOPs का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। हमारे नुमाइंदा अदनान हैदरबरी इस वक्त वहां मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वहां क्या हालात हैं। जी अदनान हैदरबरी, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरवदाई में मौजूद हूँ और चूँकि ईद कुर्बान के हवाले से जो मुसाफिर हैं वो अपने अपने गांव अपने अपने घरों की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन बाज़ मकामात पे मुसाफिरों का ये कहना है कि उनसे जो किराए हैं वो डबल सीट के लिए जा रहे हैं, 2 सीटों में किराए लिए जा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। क्यों कि इस वक्त कोरोना की वजह से माशी हालात जो मुल्की हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उस पर गरीब के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। गरीब इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक सीट के बजाय उनको 2-2 सीटों को किराए देने पड़ते हैं। मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं आया क्या ऐसी वजूहत हैं, क्यों गरीब जो जिसकी कमर पहली दोरी हो चुकी है उसके साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं जी कि गरीब इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या वजूहत हैं कि SOP के एहतराम नहीं किया जा रहा, उसके साथ साथ ना हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पे मौजूद है, ना ही मास्क मौजूद है, ना ही, और इसके बाद जो बसें हैं वो भी खचा खच भर के ले जाई जा रही हैं और मुसाफिरों से पैसे डबल ले जा रहे हैं। क्यों? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। वैसे SOPs के तहत उन्होंने गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप डबल सीट करके लेके जाएं। उस हिसाब से भी जो हमारा किराया बनता है डबल पे वो तकरीबन 760 बनता है, हमने डिस्काउंट करके तकरीबन 600 550 किया हुआ है। और उसके अलावा तो वैसे तो काम की नोयत आप देख सकते हैं कि पैसेंजर वगैरह नहीं है उस तरह के, और नोयत ना होना भी इस वजह से भी हो सकती है कि किराए डबल लिए जा रहे हैं मुसाफिरों के साथ। चलें, आप तो अपने इलाके में जो कश्मीर में जा रही है बस, तो यहाँ से डबल किराया कराची मुल्क के दीगर इलाकों में भी जा रहा है, कोयटा में बसें जा रही हैं, तो उन लोगों को, गरीबों को तो इस वाले से परेशानी ठीक है ना? हाँ, वो तो है, वो तो फिर सब साथ हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से अभी तो आपको पता है कि ईद पे एक तरफा सवारी हो जाती है, फिर वापसी पे भी गाड़ी जो है उस तरह का वो सवारी नहीं है, रूटीन नहीं है, और जो लोग हैं वो डबल किराए की वजह से तंग हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उस वजह से ट्रांसपोर्टर भी मुश्किलात का शिकार में हैं और पैसेंजर भी हैं। ये जी, आपने इनकी बात सुनी कि यही वजूहत हैं कि जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो भी परेशानी का शिकार है। क्यों कि लॉकडाउन की वजह से सवारियां भी कम हैं और मुसाफिरों को चूँकि घर में जाना है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, इनको डबल किराए देने पड़ते हैं, इनकी भी बहुत सी मुश्किलात हैं। इसके साथ साथ अगर इनकी मुश्किलात हैं तो गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि इनकी मुश्किलात को भी काम करे, ताकि जो गरीब अपने घरों को जा रहे हैं, ईद मनाने जा रहे हैं, दीगर छुट्टियों में जा रहे हैं, तो उनकी कमर जो है वो दोरी ना हो, वो भी परेशानी का शिकार ना हो। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत सोचना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता एक बरस के दौरान पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान के हवाले से काफी पेशरफ्त की है। हमाद अजहर ने ट्वीट करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने हमारी इन काविशों को सराहा है। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि हमें इस रफ्तार को बरकरार रखना है। FATF के हवाले से कानून साजी इसका लाजिम हिस्सा है। मुझे उम्मीद है हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी मफाद को तरजीह देगी। और यहाँ आपको बताएं कि सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने अरकान को ईद की एडवांस मुबारकबाद दी। चेयरमैन साबिर संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल बाबर अवान ने सेनेट में पेश किया, जबकि वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाबर अवान ने ही अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल पेश किया। बिल की मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट साबिर संजरानी ने अरकान को ईद की एडवांस मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज, शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल
और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए गए थे। अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी को पहले बात करने का मौका दिया जाए। स्पीकर ने अपोजिशन से कहा कि इस तरह नहीं होगा कि आप डिक्टेट करें, ऐसा ही करना है तो आप फिर मेरी सीट पर बैठ जाएं। कौमी असम्बली इजलास में दोनों बिल्स पर अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई थीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कि ईद उल अजहा की नमाज पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदी की मजम्मत करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय कर्फ्यू को 360 दिन हो चुके हैं। इस साल भारत ने 823 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 14 शहादतें हुई और 138 अफराद जख्मी हुए। भारतीय फजाइया ने राफेल तैयारे हासिल कर लिए हैं। मोदी की क़यादत में भारत हिंदू गलबे की तरफ बढ़ रहा है। हसन रियाज, JNN, इस्लामाबाद। ईद उल अजहा के मौके पर मरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मलका कौसार मरी में ईद उल अजहा पर सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ मरी के मकामी लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर जाने की इजाजत दी जाएगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में ईद उल अजहा पर शवों के दाखिलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुकामी अधिकार देकर मरी में जाने की जो वो इजाजत दी जाएगी। इस हवाले से जो वो एसपी ट्रैफिक ने जो प्लान जारी किया उस हवाले से उनका ये कहना था कि मरी में मुकम्मल तौर पर जो वो नाकाबंदी जो वो कर दी गई है। 12 मुकामात जो वो बताए गए हैं जहाँ पर खुसूसी नाके जो वो कायम किए गए हैं और 2 DSP, 12 इंस्पेक्टर और 150 जो वो ट्रैफिक वार्डन जो है उनको तैनात किया गया है और मुकम्मल तौर पर जो वो ईद के पहले 3 रोज तक जो वो तफरीकी मुकामात मरी के जो वो आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने की गुजरात के रिहायशी ज़हूर मेहदी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए दरख्वास्त 10,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने की गुजरात के रिहायशी ज़हूर मेहदी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए दरख्वास्त 10,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल नौशीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त मौसूल हुई थी जो ज़हूर मेहदी गुजरात के रिहायशियों की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह की जानिब से समाअत की गई और शदीद बरहम हो गए चीफ जस्टिस इस मौके पर और उन्होंने जो दरख्वास्त है उसको 10,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है और उन्होंने वकील साहब को भी काफ़ी डांट फैला दी इस हवाले से और उन्होंने कहा कि आप ज़रा इस्तदाद लें, जिस पर वकील ने इस्तदाद कोर्ट में पढ़ के भी सुनाई और उसके अलावा उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत इस तरह की दरख्वास्तें सुनना शुरू कर दे तो अवाम की असल दरख्वास्तों का क्या होगा। ये आदि दरख्वास्त गुजार हैं जो गैर संजीदा दरख्वास्तें जो हैं वो दायर करते हैं, तो उस पर जो है दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और 10,000 रुपया जुर्माना जो है दरख्वास्त गुजार पर लगा दिया गया अदालत की जानिब। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में बेंच तश्कील कर दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को कुलभूषण यादव कानूनी नुमाइंदा केस की समाअत करेगी। दरख्वास्त में वफाक को बजरिया सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ को फरीक बनाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी रहमान, तफसीलात क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कुलभूषण यादव की सज़ा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए जो है दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने हाल ही में जारी किया था सदारती ऑर्डिनेंस, उसके तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें हुकूमत की कुलभूषण यादव के लिए जो कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है इसमें, जिस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह की सरबराही में बेंच की जो है तश्कील कर दी गई है और इसकी जो समाअत है वो 3 अगस्त को मुकर्रर की गई है, जिसमें फरीक जो हैं
सेक्रेटरी दिफा को फरीक बनाया गया है और एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ को इसमें फरीक बनाया गया है। इसमें मजीद मैं आपको मौक़िफ़ के बारे में बता कि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुलभूषण यादव ने सज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है उससे इनकार कर दिया था और भारत ने भी इस हवाले से जो है वो गुरेज किया है। अदालत हुक्म दे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो सके। और इंडियन नेवी के अफसरान ने जो है कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को जो है गिरफ्तार किया गया था उसको, और अदालत ने कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा फ़िलहाल मुकर्रर नहीं किया, लेकिन 3 अगस्त को जो समाअत की जाएगी उसमें जो है चांसेस हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 93 के तहत सिर्फ 5 मुशीर मुकर्रर किए जा सकते हैं। अदालत मुआवनीन को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी की मदद लें तो क्या हर्ज है। बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि मुआवनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को इतना इख्तियार भी ना दें तो निज़ाम कैसे चलेगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और यहाँ आपको बताएं कि ठट्टा वाटर सप्लाई ठेकों पर नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। आसिफ अली जरदारी ने दूसरे रेफरेंस में भी फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया है। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब से 4 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है दरख्वास्त खारिज कर देने की दरख्वास्त की गई है, जिसमें ठट्टा वाटर सप्लाई टैंकों पर नैब रेफरेंस के हवाले से ये पेशरफ्त बहुत ही पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें आज आसिफ अली जरदारी के जो वकील हैं फारूक एच नायक और उसके अलावा असद अब्बासी एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि फर्द जुर्म जो है वो रोकें, रेफरेंस खारिज करके आसिफ अली जरदारी को बाइज्जत बरी किया जाए। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया कि अब ये दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से तमाम जो फर्द जुर्म आयद करने के इंतजाम हैं उनको पूरा कर लिया गया था, और अब ये अहम दरख्वास्त सामने आई है जिस पर इस्तदा की गई है कि इसको खारिज किया जाए। तो उस पर अभी फ़िलहाल उसको मुकर्रर कर दिया गया है और उसमें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फ़िलहाल यही पेशरफ्त है। जैसे ही नैब की जानिब से कोई जवाब जमा करवाया जाएगा उस पर मज़ीद जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। शिबली फराज इमरान खान से पूछें कि चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब से पूछें चीनी का बहरान क्यों पैदा किया, फिर जहाज में चीनी चोर को फरार क्यों कराया। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा कि इमरान खान से पूछें कि मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल क्यों किया, कब जवाब देंगे। फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन क्यों, कब पेश होंगे। इमरान खान ने 23 खुफिया अकाउंट्स क्यों छुपाए, इसका हिसाब कब देंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौम इमरान खान का एक ही बड़ा फैसला सुनना चाहती है कि इस्तीफा दे और मुल्क की जान छोड़े। इमरान नियाजी ने बड़ा फैसला किया और चीनी चोरी करा दी। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने बड़ा फैसला किया और डॉलर की कीमत बढ़ाकर मुल्क पर 12,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया। भारतीय फौज एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर खिलाफवर्जी, रख चक्री सेक्टर पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की एक बार फिर खिलाफवर्जी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर रख चक्री सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की।
यहाँ रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का, जहां 5 अगस्त यौम सियाह के हवाले से परेड ग्राउंड 76 की सफाई का काम शुरू। 5 अगस्त को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान परेड ग्राउंड से असम्बली तक एहतजाजी रैली की क़यादत भी करेंगे। सरगोदा के इलाके मुड रांझा के SHO जिशान असदलक ने DSP कोटो मोमिन एजाज हुसैन शाह की सरबराही में पुलिस के हमरा नाका लगाकर जिला मंडी बहाउद्दीन से जिला सरगोदा मुनशियात स्मगलिंग करते हुए बहन भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबरी की बुनियाद पर नाका लगाया और 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिमान के कब्जे से 16 किलोग्राम से जायद मिकदार में हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरार मोड़ के रिहायशी बहन भाई नसरीन इल्ताफ, नईम इल्ताफ और आमिर कार नंबर LC में सवार होकर सरगोदा आ रहे थे कि मुखबिर की इत्तला पर गाड़ी को रोका गया, जिसके अंदर से 16 किलो से ज्यादा नशियात बरामद करके बहन भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर में ईद कुर्बान के मौके पर जिला इंतजामिया ने मवेशियों की खरीद फरोख्त की गर्ज से आने वाले अफराद के लिए तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की है। कुर्बानी के जानवरों के लिए पीने का पानी, सायादार जगह और वेटरनरी क्लिनिक भी कायम किए गए हैं। राजनपुर मवेशी मंडी में इस साल कोरोना वायरस की वबा के बाइस हालात गैर मामूली हैं और हर शख्स ने न सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करनी है बल्कि दूसरों को भी महफूज रखना है। मवेशी मंडी में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत पर कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मवेशी मंडी और मुकर्रर किए गए आर्जी सेल पॉइंट्स पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उमरकोट की कार्रवाई गिरफ्तार शुदा बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग से दौरान तफ्तीश बड़ी पेशरफ्त करते हुए कुल 11 मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। SSP उमरकोट सैयद आमिर अब्बास शाह के हुक्म पर जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस जमन में उमरकोट पुलिस और CIA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार शुदा बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना मुलजिम अली शेर माछी और मोहम्मद शरीफ राजर की निशानदही पर रात गए मुताबिक मकामात पर छापामार कार्रवाइयां करते हुए कामयाबी से 10 मजीद मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुलजिमान से अभी मजीद तफ्तीश जारी है। थाना बवाना के इलाके किला कंगरा में कत्ल की रज़ाखेज वारदात। बिलाल नामी नौजवान ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी सगी मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चिनोड़ की तहसील बवाना में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटे ने चंद एकड़ जमीन की खातिर सगी मां को मौत के घाट उतार दिया। थाना बवाना पुलिस का कहना है कि बिलाल वल्द अल्लाह यार ने फायरिंग करके अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वजह अनाद जायदाद का तनाजा है। इत्तला मिलते ही थाना बवाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। لبيك لا شريك لك